So hello everyone, we are into the topic nature of roots in chapter 4 quadratic equations of class 10th. In our previous topic we talked about what is a quadratic method and how can you solve the given quadratic equation by using the quadratic method, or how can we actually find whether the roots exist or not, and if so then how can we find them with the help of quadratic formula. Right. Our today's topic is really interesting. It's about the nature of roots. Since by quadratic formula we know that if this is the quadratic equation given to us, its roots are given by this formula. X is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice of a. And this term b square minus 4ac is denoted by capital D and is known as discriminant of the given quadratic equation. Right, sir? So use x has like what is x? The root depends on discriminant. Now this discriminant is actually inside the square root. Now if d is discriminant, so it can have three positive cases. First, d can be less than 0, negative हो सकता है. Second, d can be 0. Third, d can be greater than 0. Now if d is less than 0, so रूट के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास इस केस में, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव. और अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू आ जाए वी कैन नॉट फाइंड इट. यू हैव स्टडीड चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स इन क्लास 8, और वहां पे आपने किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाला था, आपको याद होगा. सो इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, नो रूट्स, बट डू रिमेंबर कौन से वाले, no real roots. In 11th class you'll come to know about something known as complex. I won't be discussing right here, so इसलिए it's important to write here, so it will have no real roots. Right. Now when d is equal to 0, so if d is equal to 0, this whole stuff vanishes, ये खत्म हो जाएगा. d 0 है, रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0. अब 0 को मैं किसी चीज में प्लस करूं या माइनस करूं कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो दोनों बार एक ही आंसर आएगा, माइनस बी प्लस 0 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, और माइनस बी माइनस 0 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, तो माइनस बी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए ही आया. सो व्हेन डी इज इक्वल टू 0, द रूट्स आर रियल बट दे आर व्हाट, इक्वल. सो व्हेनेवर इन इक्वेशन इज गिवन टू अस the roots of the given quadratic equation are equal, what we will be doing in that equation is we will be taking discriminant equals to 0. Now we come to the third one. If d is greater than 0, that is positive. When d is positive, so under root of d, under root of something positive will be something. Okay, it will be something positive only. And when you टेक दिस थिंग, जब आप बी में कोई चीज पॉजिटिव ऐड करोगे तो नया आंसर आएगा, उसी बी में से जब उस चीज को माइनस करोगे तो एक और नया आंसर आएगा. सो इस केस में रूट्स रियल रहेंगे लेकिन डिस्टिंक्ट, मतलब दो रूट्स अलग अलग होंगे. इक्वल का मतलब रूट्स दो हैं बट दोनों सेम है, जिसको कहते हैं रिपीटेड रूट. ठीक है, इस केस के लिए हम इसको रिपीटेड रूट का वर्ड भी यूज करते थे. यहाँ पे आएगा डिस्टिंक्ट रूट्स, और डिस्टिंक्ट के लिए हम unequal word भी यूज करते हैं. Right, sir? So discriminant will give us three options: either discriminant is less than 0, or discriminant is equal to 0, or discriminant is greater than 0. Discriminant less than 0, कहानी खत्म हो जाती है, no real root, कुछ नहीं करना उसके बाद. Discriminant equal to 0 हो जाए तो इसका मतलब roots are equal. Right. उसके बाद discriminant अगर हमारे पास greater than 0 हो जाए तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. बट अगर वो कहता है रूट एग्जिस्ट, राइट, सो रूट एग्जिस्ट के लिए ये दोनों केसेस इकट्ठे हो जाते हैं. दिस इज द केस व्हेन रियल रूट्स. सो दैट इज व्हाई जब भी वो बोला जाएगा द रूट्स आर रियल या रूट्स एग्जिस्ट, यू विल टेक डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि इन दो केसेस में ही रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इस वाले केस में रूट एग्जिस्ट नहीं करता. सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ रूट्स. ऑल ऑफ यू आर सपोज्ड टू ड्रॉ दिस डायग्राम. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो व्हेन यू गोइंग थ्रू इट. राइट, नाउ
type 1 questions. Very simple. This is the quadratic equation given to us. He's asking us discuss the nature of roots of this quadratic equation. What will be the nature? कैसे roots होंगे without finding the roots. ठीक है. What is A here? 2, B कितना है? 3, C कितना है? -1. क्या फाइंड करोगे? डिस्क्रिमिनेंट. B स्क्वायर माइनस 4AC. 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1 कितना हो गया? 9 प्लस 4 टू द 8 इक्वल्स टू 17. क्या हुआ? ग्रेटर देन 0. ठीक है. अब हमारे पास आपने पहले ही ये एरो बना के रखने हैं, राइट. This is for less than 0, this is for equal to 0, and this is for greater than 0. Greater than 0 means real and distinct roots. So that will be the nature of roots in this case, right. So this is a type 1 question, very simple. कोई भी आ जाए आपके पास, आप इसको कर सकते हैं. So we won't be investing a lot of time on this. ये सबसे आसान है हमारे पास. ठीक है. अब हमारे पास क्वेश्चन जो एग्जाम्स में इसके बेसिस पे आएंगे, उस पे क्या आता है हमारे पास? दैट विल बी टू फाइंड सम अननोन कांस्टेंट. लाइक देयर इज अ क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक ओनली दैट फॉर द इक्वेशन 2x square plus kx plus 3 equals to 0, find k. This is type 2 questions. They are expected in exams. Find k if roots are equal. So here it is given to us the roots of this equation are what? Equal. So find what is A here? 2. What is B here? Coefficient of x, k. What is C here? 3. So what is discriminant? B square minus 4AC. रूट्स की बात हो रही है तो डिस्क्रिमिनेंट का तो मामला आएगा ही आएगा. So कितना हो जाएगा हमारे पास? ये k square minus 4 into 2 into 3 which is equal to k square minus 8 3 is the 24. Now what is the question? Roots are equal. This is given to us. So according to question, discriminant is equal to 0. Why is it so? You know it very well. Because whenever roots are equal, discriminant is equal to 0. और पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले. So वो फिगर आपको बना के रखनी है आपके सामने. So it means you will take k square minus 24 equals to 0. It's better you factorize it. K square minus root 24 whole square equal to 0. K minus root 24 into k plus root 24 is equal to 0. तो k के दो आंसर आ जाएंगे, या प्लस रूट 24 या माइनस रूट 24. ठीक है. और रूट 24 का फैक्टराइज कर सकते हो. 24 2 से गया 12, 2 से गया 6, ये आगे होगा नहीं. सो दिस विल बी 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6. ठीक है. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ k. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. दिस इज टाइप 2. So type 2 हमारे पास रहेगी when unknown constant is to be found and roots equal and something unknown is to be found, right boss? So this is type 2. So type 2 पे भी बहुत ज़्यादा questions नहीं करेंगे. We already have some questions in your textbook. ठीक है. You can try it. It is given in the textbook. Only 2 questions are there based on this. So I will be taking up type 3, which is not there in textbook, but is there somewhere in exampler. When the roots are real but distinct. ठीक है. ये सबसे important और सबसे different है. It comes under HOTS and type 3. So type 3 में हम चलते हैं सीधे. So sir, type 3. Right, these are the questions that you really can expect in your exams. Like I'm taking first case. It says x square plus kx plus 1 is equal to 0 is the given quadratic equation. And what is he asking us? Find k. You have to find k if this equation has
real but distinct roots, real and unequal roots, right? Real and unequal roots. So what is the situation? This is given to us, a real and unequal. What is the meaning of real and unequal? So according to question, a discriminant is greater than 0, right? So discriminant is greater than 0. Here a is equal to 1, b is equal to k, and c is equal to 1. That is k square minus 4 into 1 into 1 is greater than 0, means k square minus 4 is greater than 0. अब उसने क्या बोला? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. अगर यहाँ पे अनइक्वल वर्ड नहीं लिखा होता, सर रियल रूट्स लिखा होता, सो वी कुड हैव टेकन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट यहाँ अनइक्वल लिखा है तो केस नंबर 3 यूज होगा, राइट? तो अब इसके बाद आप हमेशा क्या करोगे? फैक्टराइज कर लोगे इसको. सो दिस विल बी k स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ग्रेटर देन 0. दिस विल गिव यू k स्क्वायर k माइनस 2 इंटू k प्लस 2 ग्रेटर देन 0. देखो इक्वालिटी को सॉल्व करना बहुत इजी था. प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज इक्वल टू 0, दोनों में से एक 0 होना चाहिए. इनइक्वालिटीज थोड़ी सी डिफरेंट है. हमने भी इनके सॉल्यूशंस नहीं पढ़े ज़्यादा, सो वी विल नॉट बी पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन नोइंग इनइक्वालिटीज. हम एक शॉर्टकट सीखेंगे इसका आंसर निकालने का. दो चीज़ों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? या तो दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी. सो हम इसके लिए एक मेथड यूज करते हैं जो 11th क्लास के बाद आप काफ़ी ज़्यादा यूज करोगे, वेवी कर्व मेथड, राइट? सो व्हाट वी डू इज वी प्लॉट इट ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, कुछ नहीं करना. आपने इसको इक्वल टू 0 ले लिया. क्या है? k माइनस 2 इंटू के प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ले लिया. तो k के क्या क्या आंसर्स आ गए आपके पास? 2 और माइनस 2. एंड वी प्लॉट इट ऑन द नंबर लाइन. ये माइनस इन्फिनिटी होती है, प्लस इन्फिनिटी होती है. आपको पता है ये रियल लाइन हम लोग करते रहे हैं. 7th क्लास में भी थी, 9th क्लास में भी थी. टर्निंग पॉइंट्स कौन कौन से आगे बीच में? ऑन द नंबर लाइन यू नो L फॉर लेस, L फॉर लेफ्ट. द लेसर वैल्यू इज ऑलवेज टेकन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सबको क्लियर है इस चीज़ का ना? सो जो छोटे वाली वैल्यू है दोनों में, वो लेफ्ट साइड पे रहेगी, दूसरी वाली राइट साइड पे आ जाएगी. हम इसका पार्टीशन कर देंगे. क्या कर देंगे? हम इसका पार्टीशन कर देंगे. अलग अलग कर दिया मैंने इसको. तरीका अलग रहता है वेवी कर्व का, बट मैं आपको बेसिक मेथड से समझाऊंगा ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. आप कोई भी, ये इनको कहते हैं, हमने इनको इंटरवल्स में बांट दिया. आप इन एरियाज में कोई भी अगर रैंडम वैल्यू ले लो और उस वैल्यू को इस इनइक्वालिटी पे पुट कर दो और अकॉर्डिंगली साइन. कोई एक वैल्यू जो एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा वो पूरे इंटरवल के लिए ट्रू होगा. ये -2 से लेके 2 के बीच में कितने नंबर आते हैं? इनफाइनाइट. टेक सम नंबर. सबसे आसान, सपोज करो मैंने इसके लिए क्या ले लिया? बीच में 0 ले लिया. अब इस 0 को मैं इस इनइक्वालिटी में पुट करता हूं k की जगह पे. 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2 क्या बनता है? माइनस इंटू प्लस. क्या बना? वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ साइन चेक करना है. माइनस इंटू प्लस क्या बना? नेगेटिव. ऑल्टरनेट होता है. अगर ये नेगेटिव बना तो इसके बाद क्या आएगा? पॉजिटिव. अगर इसके बाद एक और होता तो फिर क्या आता? नेगेटिव. ऐसे ये नेगेटिव है तो इसके पहले क्या आना था? पॉजिटिव. ऑल्टरनेट साइंस होते हैं. कौन से साइंस होते हैं? ऑल्टरनेट. मैं 2 केसेस और डिस्कस करूंगा आपके साथ. डोंट बी पैनिक. आपको आंसर में क्या चाहिए था? ग्रेटर देन 0. अब देखो ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ पे आंसर आ रहा है. सो इसका मतलब या तो k जो है वो -2 से कम होगा या k जो है वो 2 से बड़ा होगा. So we'll discuss more about this wavy curve method. ठीक है, we'll have one more question. So यहाँ पे अगर k -2 से कम होगा तो भी रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे, और अगर k ग्रेटर देन 2 होगा तो भी रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे. अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे k के कितने आंसर्स आए? -2 से कम कितने नंबर है? इनफाइनाइट. +2 से कितने नंबर ज़्यादा है? इनफाइनाइट. मीन्स इस केस के लिए k के पास कितनी वैल्यूज हैं? Infinitely many values, right? So let's have another case. I expect all of you to please take a screenshot or note it on your notebook. So let me have another question based on the same concept. तो next तो हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी टाइप का. The question is x square
minus that was kx plus 4 equals to 0. राइट सर. इसमें क्वेश्चन में उसने पूछा है रूट्स आर रियल, दैट्स इट. रूट्स आर रियल. पिछले वाले में क्या था, रियल एंड अनइक्वल. तो इसका मतलब अगर रूट्स आर रियल है तो क्या कॉन्सेप्ट आएगा, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अनइक्वल वाला होता तो ये केस आता, सिर्फ इक्वल टू 0 होता तो सिर्फ इक्वल टू 0 आता. बट उसमें बोला रियल है एंड रूट्स आर रियल, सॉरी रियल है, तो दोनों केसेस आएंगे. इक्वालिटी वाला भी आ सकता है, अनइक्वल वाला भी आ सकता है. ठीक है बेटे. सो यहाँ हमारे पास व्हाट इज ए 1, बी कितना है माइनस के, सी कितना है 4. डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना बन गया, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 विच इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 16. राइट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की हमारे पास, कि ये जो रूट्स हैं वो रियल हैं. तो क्वेश्चन के अनुसार d इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0. मतलब के स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्या करेंगे, फैक्टराइज. के स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. जरूरी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर ही हो. सपोज करो अगर ये 15 होता तो रूट 15 का स्क्वायर लिख लेते हैं आप. सो दिस विल गिव यू k माइनस 4 इंटू के प्लस 4, है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. अब बेबी कॉम मेथड की बात करते हैं. क्या बोला था आपको, इसको इक्वल टू 0 ले लो, यहाँ से k की दो वैल्यू प्लॉट हो जाएंगी. तो k का क्या क्या आंसर आया, 4 एंड माइनस 4. नंबर लाइन बनाएंगे, यह आएगा माइनस इन्फिनिटी, यह आएगा प्लस इन्फिनिटी, यहाँ आएगा माइनस 4, यहाँ आएगा प्लस 4. छोटे वाली वैल्यू लग, कहीं यहाँ पे प्लस 4 और यहाँ पे माइनस 4 नहीं लिखना, बता दिया आपको. द लेसर वैल्यू इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज पार्टीशन कर दी. अब आप किसी भी इंटरवल में कोई एक वैल्यू ले लो. मैंने यहाँ पे क्यों वैल्यूज ले रहा था पिछली बार, क्योंकि 0 सबसे आसान है. बट सपोज करो आप कहते हैं नहीं सर हमें यहाँ से लेके चेक करके बताओ. आप यहाँ से चेक करते हैं, 4 से बड़ी वैल्यू आएगी, यहाँ पे 5 ले लो. यहाँ पुट करना है आपको k की जगह 5 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 4, और सिर्फ साइन चेक करना, वैल्यू चेक नहीं करनी. 5 माइनस 4 क्या है, पॉजिटिव, और 5 प्लस 4 भी क्या है, पॉजिटिव. पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आया, पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव है तो ये कितना आएगा, नेगेटिव. अगर ये नेगेटिव है तो ये वापस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. ऑल्टरनेट साइंस. अब अगर आप चेक करना चाहते हो, वैसे हम यहाँ पे कहते हैं कोफिशिएंट 1 हो ग्रेटर देन 0 हो तो सबसे राइट वाला पॉजिटिव होता है, वो बेसिक तरीका है. बट आपको बता दिया ऐसा क्यों होता है. अब अगर आप कहते हो नहीं मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, आप इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले लो, 0 ले लो. 0 माइनस 4 नेगेटिव, 0 प्लस 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव. आप कहते हैं नहीं सर मैं 2 के लिए चेक करना चाहता हूँ, चेक करो 2 ले लो. 2 माइनस 4 नेगेटिव, 2 प्लस 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव. हमने इस इंटरवल में कोई आसान वैल्यू लेनी है, इसीलिए हम हमेशा यहाँ से प्रेफर करते थे, क्योंकि यहाँ बीच में 0 माइनस 4 और 4 के बीच में क्या था, 0. 0 के टाइम कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है. राइट. मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वाला केस. तो इसका मतलब इक्वल टू 7 है तो आंसर क्या आएगा, ये माइनस 4 से लेस वाली साइड है. तो या तो k जो है वो माइनस 4 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, और या फिर जो है k वो क्या होना चाहिए, 4 से just to the right of 4. So this is how do you actually evaluate, right sir? These are very important questions. अगर आपको स्टैंडर्ड पेपर में या सबसे मुश्किल क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सो कॉल्ड जिसको आप मुश्किल कहोगे अगर आएगा, वो इस टॉपिक के बाहर से नहीं आ सकता. मतलब दिस इज द टॉपिक that you really need to focus on if you want to score 100% in this topic, quadratic equations. ठीक है सर, आगे चलते हैं. लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन. कभी कभी क्या होता है हमारे पास, जरूरी तो नहीं है ना फैक्टराइजेशन हो ही जाए, कभी कभी हो सकता है ना भी हो फैक्टराइजेशन. लाइक आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0. द क्वेश्चन इज रूट्स आर रियल. मैं रियल ही लिख रहा हूँ, अगर आपको डिस्टिंक्ट लिखने होंगे तो आप
कंडीशन उसमें सिर्फ ड्रॉप कर देना इक्वल टू वाली, ठीक है। रियल रूट्स की बात हो रही है सिर्फ, रियल रूट्स मीन्स डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस मीन्स k स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हर जगह वहां पे क्या बन रहा था, माइनस, और हमारा फॉर्मूला क्या लग रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, प्लस, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन तो होता नहीं, ठीक है। अब इसका वेवी का मैथ वगैरह कुछ नहीं बनेगा। अब मुझे बताओ ये कब कब ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव नहीं होगा। हम सबको पता है कि अगर k कोई रियल नंबर है, अगर k इज रियल, कोई भी रियल नंबर है, उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या होगा, 0 या उससे बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर का भी नेगेटिव नहीं होता, पता है ना। तो इसका मतलब k स्क्वायर प्लस 4, अगर मैं दोनों तरफ 4 ऐड कर दूं तो k स्क्वायर प्लस 4 जो है ये तो 4 से भी बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है 0 से बड़ा तो है ही है, जो 4 से बड़ा है वो 0 से बड़ा है या नहीं है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल k, दिस इज ट्रू फॉर ऑल k। आप k को कोई भी वैल्यू दे दो, एनी वैल्यू, राइट, इसके रूट्स हमेशा रियल से ही आएंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो जरूरी नहीं हर एक की फैक्टराइजेशन करनी, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है उसका आंसर होता है फॉर ऑल रियल्स। इफ इट इज के स्क्वायर प्लस समथिंग, ठीक है, इट इज ऑलवेज ऑल रियल्स, बिकॉज के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर 0 में कुछ और प्लस करोगे तो वो हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन जो थोड़ा सा और डिफरेंट हो सकता है। लास्ट ऑप्शन ऑफ फैक्टराइजेशन, राइट, देन विल बाइंडिंग इट अप। जैसे एक और क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2k, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2k इज इक्वल टू 0। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है। बिफोर अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट यू आर सपोज टू राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तभी जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे अगेन द कॉन्सेप्ट इज real roots, right, real roots means discriminant is greater than equal to 0। तो क्या आएगा हमारे पास, b square minus 4ac greater than equal to 0, k square, sorry this was k also with this, so this k square minus 8k greater than equal to 0, k common आ गया, k minus 8 greater than equal to 0, plot it on the number line, minus infinity plus infinity। अब इसको जब आप इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा, या तो k इक्वल टू 0 आएगा, है ना, इसको इक्वल टू 0 अलग से सॉल्व करके देख लो, या तो k इक्वल टू 0 आएगा या k माइनस 8 इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब k इक्वल टू 8 आएगा। पार्टीशन कर दो। अब कोई रेंडमली एक वैल्यू उठा लो किसी एक इंटरवल में, वैसे तो ये आना ही आना, पता है आपको दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर भी चेक करते हैं। किसी एक इंटरवल में वैल्यू उठा लो, इस बार सबसे लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 0 नहीं ले सकते, क्योंकि जो प्लॉट की है वो नहीं लेनी, उनके बिना वैल्यू लेनी है आपने। अगर मैं इसकी इस तरफ चला जाता हूँ, मैं -1 ले लेता हूँ, सपोज करो, पुट करो k की जगह -1 -8, k की जगह -1 पुट किया, कितना बना, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बना, पॉजिटिव। तो सिंपल ऑप्शन था, राइट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। राइट साइड से शुरू करना है, सबसे लास्ट वाली पॉजिटिव, उससे पहले नेगेटिव, उससे पहले पॉजिटिव। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि k की कोफिशिएंट्स भी पॉजिटिव हों, तो उन सबसे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है आप किसी एक इंटरवल में कोई एक वैल्यू ले लो, बस फंडा ओवर। इट मीन्स ईदर k इज लेस देन इक्वल टू 0 और k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। सो ये हो गया हमारे पास टाइप 3, राइट सर। इसके बियॉन्ड आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स में, इन वॉट एवर एग्जाम यू आर राइटिंग, ठीक है, इन क्लास 10। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।